पंजाब जीके ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ that is dash is not a type of dance of Punjab but is a type of dash ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਆਰਡਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ that means ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਝੂਮਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਝੂਮਰ that means ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਝੂਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਮਰ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਹੈ that means ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਲੁੱਡੀ ਲੁੱਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ornament ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਚੋਪ ਚੋਪ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਸੋ that means ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚੋਪ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ that is ਚੀਚੋ ਚੀਚ ਗਨੇਰੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ इट्स ए गेम चीचो चीच गनेरियां दो तेरियां दो मेरियां है ना इस तरीके नाल पिंडां दे आम तौर ते खेड़ा खेडदे ने ये सो ये तरह एक फोक गेम है साडी ये वेदास अगला क्वेश्चन साडे कोल की है वेदास आर कंपोज्ड ऑन ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਰਮਾਇਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ that means ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ on the banks of river in ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ in Punjab the maximum number of ministers can be total number of ministers ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 15% ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ 15% ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ 15% ਲਿਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 15% ਆਫ ਵਾਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 117 ਸੋ 117 ਦਾ 15% ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ 16 ਦਾ 1 ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਪਿੱਛੇ 15 ਔਰ 15 ਪਿੱਛੇ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ 17 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ 17 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 18 ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ Bhakra Dam is Asia's largest dam having a height of dash and dash ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ that means ਸਾਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸੋ that means ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੈਮ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ 225 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ An act to manage Gurdwaras in Punjab was passed in dash and was originally called Sikh Gurdwara Prabandhak Committee basically ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ Master Tara Singh was associated with which of the following movements? Master Tara Singh ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਰਿਆਸਤੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ
The government has Punjab to decided to establish dash estates for the promotion. ਕਿੰਨੀਆਂ estate ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ 5 estates ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? 5 ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। Who among the following has been the youngest recipient of Sahitya Academy Award? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ 1969-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ। Dash form of dance can be performed even in the sitting posture and is connected with, ये तो ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਧਮਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਮਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਡਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ can be dash forward can be sitting position, ठीक है जी, ਇਹ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜੁੱਲੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। Which of the following place is said to be the home of Maharaja Ranjit Singh Summer Place? Summer Place ਰਾਮਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸਮਰ ਪਲੇਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। Which of the following countries area was smaller than Punjab? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ? ਆਈਸਲੈਂਡ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੀ ਵੱਡਾ, श्रीलंका थोड़ा जा वड्डा है। पंजाब का एरिया 50,362 है, श्रीलंका का कोई 60,000 के करीब है। स्विट्जरलैंड जो सीगा वो पंजाब नालों भी छोटा है। सो इसका जवाब की होया? स्विट्जरलैंड। शोभा सिंह डैश गैलरी इज सिचुएटेड एट डैश। सो इत्थे भी साडे कोल दो ऑप्शनस हैगियां ने, किस तरीके की गैलरी है ते किस तरीके दा जिहड़ा सी किहड़ी जगह ते सिचुएटेड हैगा है। सो शोभा सिंह ये कित्थे सिचुएटेड है इन्हां दी गैलरी, ये सानू पता होना चाहिदा है ना जी। और किस तरीके की ये गैलरी हैगी है ये भी सानू पता होना चाहिए है। सो ये शोभा सिंह की गैलरी किहड़ी है? ये आर्ट गैलरी है, पेंटिंग्स की गैलरी है। अंद्रेटा ये कांगड़ा जिले दे विच पैंदा उत्थे है। सो इसका जवाब की होएगा? बी ऑप्शन इसका जवाब होएगा। और इस तरीके नाल आपां इस सवाल का जवाब दिंदे हां। Who built the शीश महल पैलेस in पटियाला? पटियाले दे विच ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। Which is the correct order of cities when arranged in descending order? Descending ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ high ਤੋਂ low, high ਤੋਂ low, that means ਜਾਂ higher ਤੋਂ lower। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਲੰਧਰ ਆਏਗਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1 2 3 4। हाँ जी, एज पर 2011 सेंसस द मोस्ट एंड द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है जी, डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब आर, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਪੋਪੂਲੇਟਿਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲੇਟਿਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਂਸਟੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਸਟ ਪੋਪੂਲੇਟਿਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸ ਪਰ 2011 ਸੈਂਸਸ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ 34 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਬਣੀ? 5,95,000 ਬਣੀ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛਾਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਆਬਾਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। तो उस दे हिसाब नाल आपां इहदा जवाब देंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। आज 44th मॉक को देखते हैं और 45th मॉक को देखते हैं, ठीक है। लास्ट में अपने स्कोर को टोटल कीजिएगा कि क्या क्वेश्चंस रहे हैं, कितने आपके मार्क्स बने हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वाइटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी? बहुत आसान क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों से हमें कौन से विटामिन डी में हेल्प मिलती है, तो आंसर क्या है? विटामिन डी है। हालांकि सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी नहीं मिलता क्लास, हमारी स्किन के ऊपर विटामिन डी प्रेजेंट होता है, सन उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है, फिर बॉडी उसको बाद में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। चलिए, डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज, वो कहता है डायमंड आपका ग्रेफाइट से ज्यादा हार्डर क्यों होता है, रीजन पूछा गया, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से इसको ज्यादा हार्डनेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लैनेट्स आर, क्वेश्चन आपको सिंपल ऑप्शन के टर्म में पूछा गया कि प्लैनेट्स की डेफिनेशन क्या होगी, उसके टर्म में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ल्यूमिनस हैविली बॉडी। नॉन ल्यूमिनस मतलब चमकती नहीं है, कोई उसकी वजह से लश्कारे नहीं मिलते, जैसे चांद चमक रहा है, सन चमक रहा है, तारे चमकते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं, ये नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा बार रिपीटेड सा क्वेश्चन है। तो आंसर आपके पास क्या है? हेनरी बेक्वेरेल। इनफैक्ट आप रेडियो एक्टिविटी की जब यूनिट्स देखते तो बेक्वेरेल इज वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ इट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग? किसी पागल कुत्ते के काटने से आपको कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो इट्स हाइड्रोफोबिया, जिसे आप रेबीज के नाम से भी जानते हो, ठीक है, रेबीज भी होता है। तो हाइड्रोफोबिया मतलब आपको पानी का डर उसमें हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किन डिसीज? इनमें से कौन सा डिसीज आपका स्किन का है, ठीक है। तो इट्स प्लेग है। अनीमिया तो आपके ब्लड की है, आपको आयरन की कमी हो जाती है। ऑस्ट्रोमलेशिया बोन्स की है आपके पास, रिकेट्स भी बोन्स की है, प्लेग आपकी स्किन की है। विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन? इंसानों द्वारा यूज किया गया पहली धातु आपके पास कौन सी है? तो इट वॉज कॉपर। चैल्कोलिथ एज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो कॉपर वॉज द फर्स्ट यूज्ड वर्ड। विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डू वी एसोसिएट द माइक्रोलिथ इंप्लीमेंट्स? माइक्रोलिथ हमें कहां पर मिले हैं? तो माइक्रोलिथ हमें मिलते हैं मीसोलिथ में, ठीक है। मीसो का मतलब होता है ट्रांजिशन, चेंज हो रहा था। जब चेंज हुआ तो वेदर चेंज हुआ, तो बड़े बड़े पत्थर जो कि आपके इससे पहले पैलियोलिथिक में थे वो ब्रेक डाउन होते हैं छोटे पत्थरों के अंदर, तो इसको माइक्रोलिथ बोला गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स गायत्री मंत्र? तो इनमें से किस वेद में आपको गायत्री मंत्र के ट्रेसेस मिलते हैं? तो इट्स ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में अदिति और सूर्य को समर्पित है आपका गायत्री मंत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, काउंसिल्स पूछी गई हैं आपके पास कि कौन सी काउंसिल के कौन से चेयरमैन थे, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर क्या है, ठीक है। फोर्थ काउंसिल वासुमित्र थे और राजा थे कनिष्क। तीसरी काउंसिल मोगलीपुत्र तीसा ही थे, राजा थे अशोक। सेकंड काउंसिल सभाकमी, राजा थे कालशोक। और पहली काउंसिल थी में चेयरमैन थे महाकश्यप और राजा आपके कौन थे इसमें? अजात शत्रु। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म? बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन ट्रेट कौन से हैं, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं, सिर्फ पहला और दूसरा। सबसे पहले डिनायल ऑफ अथॉरिटीज ऑफ वेदास, दोनों ने वेदास को रिजेक्ट किया था, ठीक है, ठीक है। और दोनों ने वर्ण सिस्टम रिजेक्ट नहीं किया। दोनों पॉइंट देखो कितने कॉन्ट्रेरी है। कंडेमेंशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, जो जानवरों के समय बलियां या आहुतियां दी जाती थी, अश्वमेघ जैसे यज्ञ किए जाते, उनको इन्होंने कंडेम किया था, ठीक है। तो बाकी सारे पॉइंट्स आपके अलग अलग हैं। रिजेक्शन ऑफ गॉड ये जैनिज्म में है, बुद्धिज्म में कंप्लीटली नहीं है। बुद्धिज्म आपका एग्नोस्टिक कैटेगरी में काउंट होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, जैनिज्म सोल को मानती है, बुद्धिज्म सोल को नहीं मानती। परसुइंग ऑफ स्फीयर
एस्टिज्म ये आपके जैनिज्म में है लेकिन बुद्धिज्म में नहीं है। तो लास्ट के 3 पॉइंट जैनिज्म के ही थे। द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध किंगडम इन द 6th सेंचुरी BC वॉज, तो पहले आपके पास कौन थे? बिंबिसार, हर्यांक वंश के राजा बने थे बिंबिसार। Which of the following Mauryan emperor abdicated his throne and migrated to the south to live as a Jain ascetic? ठीक है, तो अपने आखिरी समय के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म का अडॉप्ट किया था। श्रवण बेलागोला जो कि मैसूर के पास है, वहां पर जाके इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, भद्रा बहू के साथ ये गए थे और स्टारवेशन से इनकी डेथ हो गई थी। Which among the following is the constitutional body appointed by the president after every 5 years to review center state financial relations? ठीक है, सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन को जज करने के लिए आप क्या बनाते हो? फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ नीति आयोग दैट प्रोवाइडेड फॉर रिक्विजिट कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर नीति आयोग टू कैरी आउट इट्स मैंडेट? ठीक है, तो उनमें से कौन से डिफरेंट वर्टिकल नीति आयोग के है आपके पास? तो आंसर क्या है? 1 2 3 4, चारों के चारों। एग्रीकल्चर के लिए अलग है, डाटा मैनेजमेंट और एनालिसिस अलग है, हेल्थ अलग है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अलग है आपके पास। When was लोकायुक्त एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली? लोकायुक्त आपके पास कब बनाया गया है? तो आपके पास 1995 के अंदर था। इन विच ईयर सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एक्ट वॉज इनेक्टेड? ठीक है, तो आपके पास है 1973। अगर आपसे आप कभी फादर ऑफ होम्योपैथी पूछा जाता है तो सेमिलियम हेनीमन, ये जर्मन एक मेडिसिनल है जिन्होंने आपकी होम्योपैथी का निर्माण किया था। If the president wants to resign from office, he may do so by writing to. अगर प्रेसिडेंट को टाइम से पहले रिजाइन करना तो वो रेजिग्नेशन किसको देगा? तो रेजिग्नेशन विल बी गिवन टू द वाइस प्रेसिडेंट, और उसी मोमेंट में वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम द प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। एक्टिंग प्रेसिडेंट बोलते हैं उसको। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ठीक है, आपको स्टेटमेंट दी है और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर बताना है। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं। जीएसटी फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स? अगर जीएसटी को देखा जाए तो ये कौन से कैटेगरी टैक्स में फॉल करता है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। ठीक है, द सेकंड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच सिटी? ठीक है, सेकंड सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर, तो ये कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में आपके पास हुआ है, कर्नाटका में। बाबा साहिब अम्बेडकर यात्रा टूर इज अ पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव? तो ये आपके पास कौन सा? देखो अपना देश। ठीक है जी। December 18 is observed as the minorities right day in India. Government has recognized 6 community as minorities. Which of the following is not a minority community? इनमें से कौन सी minority community नहीं है? तो सिंधी community को आप minority में काउंट नहीं करते हो। ठीक है, चलिए। शिवमोगा एयरपोर्ट वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी? तो ये आपके पास कहाँ है? कर्नाटका में हुआ है। Which is the first state in the country to use robotic technology to clean all the commissioned main holes? तो it was by केरला ने इसकी शुरुआत की है। सुपोषित माँ अभियान was launched by which state? तो it was done by राजस्थान, गहलोत सरकार। तो this is all we have from today's section। तो जीके सेक्शन तो एक बार अपने मार्क्स टैली कीजिए and stay tuned for the rest of the sections. Till then, take care. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए मॉक लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं और इस मॉक में क्या था वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपके पास यहाँ पे सिलोजिज्म से लिया गया है। सबसे पहले क्या बोला गया है? ऑल रिंग आर वर्ड्स, सारे के सारे रिंग क्या हैं? वर्ड्स हैं। आगे क्या है? सम वर्ड आर केजेस। एंड आगे क्या है? ऑल केजेस आर काइट। देन आगे क्या है? ऑल काइट। सबसे पहले तो स्टेटमेंट का डायग्राम बना दिया। अब इसके कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल काइट आर केजेस, सारे के सारे काइट केजेस हैं। भैया पहले तो गलत बोल रहा है। अगला क्या है? सम काइट आर रिंग, कुछ काइट क्या है? रिंग। देखो कोई रिलेशन नहीं है तो गलत है। अगला क्या है आपके पास? सम वर्ड्स आर काइट, कुछ वर्ड क्या हैं? काइट हैं।
अब देखो वर्ड और काइट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये आ गया, बिल्कुल सही, थर्ड का फॉलो कर रहा है। अगला है ऑल रिंग आर काइट, सारे के सारे रिंग क्या काइट के अंदर हैं, नहीं है। तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे समझ में है कि ओनली थर्ड तो फॉलो कर रहा है, बाकी हमें इसका इधर केस चेक करना पड़ेगा। अगर वो लिखा है तो मैं देखता हूँ इधर तो कहीं नहीं लिखा है, तो सीधा आंसर आप लोग टिक कर देंगे, ओनली 3 फॉलोज, ओनली 3 फॉलोज। डन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अगला क्वेश्चन है इफ़ गर्ल्स मीन HJSM। देखो अगर मैं बात करता हूँ, लिखा है गर्ल HJSM, है ना, ये आपके पास है। तो यहाँ पे चेक करते हैं इसका कोड 7, 9, 18 एंड 12, 8, 10, 19 एंड 13, 7 to 8 plus 1, 9 to 10 plus 1, 18 to 19 plus 1, 12 to 13 plus 1। मतलब ऊपर से नीचे आए तो सब में +1 हुआ है। तो अगर यहाँ पे भी क्या है RNES, सभी में +1 होगा। R 18 है तो एक ऐड करके S बन जाएगा 19, 14 है तो 15 आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा O, 5 है तो 6 आ जाएगा F, और 19 है तो 20 है तो आ जाएगा T, SOFT। तो D ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक पजल टाइप में है आपके पास, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देयर आर अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, 7 और पे लिखा है 6 बंदों की एक फैमिली यहाँ पे गिवन है। LMNOP एंड Q दे आर पर्सन है, दे आर प्रोफेसर, बिजनेसमैन, चार्टेड अकाउंटेंट CA मतलब, बैंक मैनेजर, इंजीनियर एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। नोट इन दैट ऑर्डर, मतलब जिस तरीके से लिखा गया है वैसे इसको अरेंज ही किया गया है। सबसे पहले देर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, 2 मैरिड कपल हैं इस फैमिली में, ये चीज़ लिखी गई है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। देन आगे है O इज़ बैंक मैनेजर इज़ मैरिड टू द लेडी प्रोफेसर। अब एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि O जो है वो क्या है, बैंक मैनेजर है। ठीक है, O जो है वो क्या है, बैंक मैनेजर एंड मैरिड टू लेडी प्रोफेसर। अगर ये O जो है बैंक मैनेजर है और लेडी प्रोफेसर से शादी करते हैं। अभी ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन है प्रोफेसर, लेडी प्रोफेसर कौन आएगा, बट इतना पता है कि यहाँ पे अगर बैंक मैनेजर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव ही आएगा, लेडी प्रोफेसर था, इतना हमें पता चल गया। आगे है Q इज़ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। Q जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है एंड इज़ अ सन ऑफ M एंड ब्रदर ऑफ P। Q जो था वो आपके पास MR था, लिख लिया। Q जो था MR था एंड इज़ द सन ऑफ M, और ये M का सन है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, M का सन है एंड द ब्रदर ऑफ P, और P का ब्रदर है, लीजिए P का ब्रदर था तो पॉजिटिव निशान आपने लगा लिया। आगे था N द चार्टेड अकाउंटेंट इज द डॉटर इन लॉ ऑफ L। L जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है, L जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है, CA है, वो कि डॉटर इन लॉ है, वो कि डॉटर इन लॉ है किसकी, L की, सॉरी N आएगा यहाँ पे, एंड द चार्टेड अकाउंट, एंड द चार्टेड अकाउंट। तो अगर ये बहू है तो इसकी हस्बैंड भी होगा, और किसकी यहाँ पे है, L की। ठीक है ना, यही लिखा था एंड द चार्टेड अकाउंटेंट, N जो है CA है, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ L। ठीक है, द बिजनेसमैन इज मैरिड टू चार्टेड अकाउंटेंट, तो बिजनेसमैन यहाँ पे आ जाएगा, लो जी ये आ गया। P इज अनमैरिड इंजीनियर, ये अनमैरिड इंजीनियर है, अनमैरिड इंजीनियर। आगे है P इज, अच्छा L इज द ग्रैंड मदर ऑफ Q। अब देखो L जो है ग्रैंड मदर है Q की, तो जुड़ गया फिर, तो L यहाँ पे आ जाएगा, इसका बच्चा जो है वो पॉजिटिव निशान यहाँ पे आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पे आपके पास आ जाएगा N और CA। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे N आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे बिजनेसमैन
ठीक है। और यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, तो लीजिए इतना हो गया। अब आपके पास यहाँ पे ये था ना, L इज दी ग्रैंड मदर ऑफ Q, तो आपके पास फिर M यहाँ पे आ जाएगा, तभी Q यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव निशान, और यहाँ पे P, और यहाँ पे MR, और P जो है अनमैरिड इंजीनियर है, MR और ये अनमैरिड इंजीनियर। ठीक है, तो बंदे 1 2 3 4 5 6 बंदे थे। 6 बैंक मैनेजर, लेडी प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, MR एंड अनमैरिड इंजीनियर। 6 बंदे भी आ गए, 6 प्रोफेशन भी आ गए, और 2 मैरिड कपल। अगर पहला और दूसरा मैरिड कपल की बात करूं तो यहाँ पे सारी की सारी कंडीशन जो हो रही हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ इज P रिलेटेड टू Q। अगर P की बात करते हैं तो P जो है वो Q का क्या लगता है। अब P जो है ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, तो वी आर नोट कि P का जेंडर क्या होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ, आंसर बनेगा D ऑप्शन, आइदर ब्रदर और सिस्टर। आइदर ब्रदर और सिस्टर, या तो ब्रदर होगी या तो सिस्टर होगी, पर हमें नहीं पता क्या होगी। डन है जी। चलिए अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोफेशन ऑफ M। अब अगर M का मेरे को सही याद है तो उसका बिजनेसमैन था। M का सही याद है तो बिजनेसमैन था। ठीक है, आगे अगर बात करता हूँ, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोफेशन ऑफ L। एक बार चेक कर लेते हैं L का क्या था। L का जो है प्रोफेशन है वो है लेडी प्रोफेसर, और M का बिजनेसमैन सही था, लेडी प्रोफेसर। ठीक देखा था मैंने, ठीक है। हाँ, तो लेडी प्रोफेसर मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा, कंफर्म हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैरिड कपल। तो मैरिड कपल मेरे को जितना ध्यान है इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ दीस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ O इज रिलेटेड टू Q। O जो था वो आपके पास लेडी टीचर का क्या था, हस्बैंड था, मतलब बैंक मैनेजर था। तो Q का क्या था, ग्रैंड फादर था। Q का क्या था, ग्रैंड फादर था। आंसर इज B ऑप्शन। ठीक है जी। चलिए अब ये तो खत्म हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिख रखा है इसको समझते हैं। सबसे पहले है, गीता करेक्टली रिमेंबर। गीता को एग्जैक्टली याद है कि आपके पास दैट हर फादर बर्थडे, उसके पापा का बर्थडे, उसके पापा का जो बर्थडे है आफ्टर 8, मतलब 8 के बाद जुलाई, बट बिफोर 12th जुलाई, मतलब 9, 10 और 11। 8 के बाद में आप चाहे तो लिख लो 8 के बाद और 12 से पहले, मतलब ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। इसका मतलब था 8 के बाद और 12 से पहले। ठीक है, हर ब्रदर, उसका ब्रदर जितेंद्र करेक्टली रिमेंबर दैट देयर बर्थडे आफ्टर 10th के बाद, 10 के बाद, मतलब 10 काउंट नहीं होगा, और बिफोर 15 जुलाई, 15 से पहले। तो अगर बात करता हूँ 11, 12, 13, 14 और 15, यहाँ पे 14, 15 भी आएगा, फिर 14, 15, 14 और 15 तो काउंट नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि डेफिनेटली उसके फादर का बर्थडे जो था वो कब था। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से 8 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से 12 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे 10 के बाद होगा। तो इन दोनों की जो कॉमन एक डेट निकल के सामने आई है वो है मेरे पास यहाँ पे 11। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 11th। आंसर जो आएगा वो आएगा 11th को उसके फादर का क्या होगा, बर्थडे होगा, क्योंकि इन दोनों में जो भी कॉमन डेट आती है वही आपका आंसर बनता है। डन। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है डाइस का है। इस क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, हम ये एक ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बताया गया है, हाउ मेनी डॉट्स वुड बी अपोजिट फेस बेयरिंग द 5 डॉट। देखो जब भी ओपन आता है तो आपको ये बताना है कि किसके अपोजिट क्या है। तो जो आउटर फेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं,
तो मतलब 3 के अपोजिट क्या आ गया 5, बाकी ऑल्टरनेट होते हैं, 1 के अपोजिट 4 और 2 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 6। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5 के अपोजिट पूछा था तो 5 के अपोजिट 3 मेरे पास डायरेक्ट आ गया था, 5 के अपोजिट पूछा था 3 तो 3 डायरेक्ट आ गया था। आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय एन एजम्पशन। मतलब यहाँ पे एजम्पशन की बात करी गई है, एज्यूम आप लोगों ने करना है जो भी आप लोगों के पास यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट एजम्पशन में क्या है, पहला है स्टेटमेंट, डेडिकेशन ऑफ ड्यूटी एंड इनडिसिप्लिन हैव कम टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोला है आपके पास जो आपके पास डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, कार्यनिष्ठ था, मतलब आपका काम करने के प्रति रुझान, ठीक है। ये सारी की सारी जो आपके पास कार्य करने की क्षमता या निष्ठा, डेडिकेशन ऑफ अ ड्यूटी एंड इन डिसिप्लिन हैव कम टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये काम करने का भाव आपका ऑर्गेनाइजेशन में रहने के बाद ही आता है, मतलब आप किसी ऑफिस में जाते हो देन ही आप में ये इच्छा आती है कि आप काम करोगे। तो पहले लिखा है ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट द एम्प्लॉई आर। बोला ऑर्गेनाइजेशन क्या जहाँ एम्प्लॉई आते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो पहला गलत, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि कार्यनिष्ठता की बात कर रही है, तो ये गलत हुआ है। अगला है एम्प्लॉई आर एक्सपेक्टेड टू डू देयर ड्यूटी। हाँ बिल्कुल, अगर एम्प्लॉई हैं तो वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, तो सेकंड तो सही बोल रहा है। तो सेकंड क्या है आपके पास, फॉलो कर जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। डन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ इशारा करते हुए अ वुमेन सेड। वुमेन स्पीकर जो है आपको मिल गई है, वुमेन सेज, क्या बोलती है वुमेन, देख लेते हैं। वुमेन सेज ही कौन है यहाँ पे, मैन। ही कौन है यहाँ पे, मैन। देखो जब भी ही आ जाता है आपके पास, हिज आ जाता है वो मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, शी आ जाता है, हर आ जाता है वो फीमेल को। ही मतलब मैन, ही जो है मतलब मैन इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई फादर इन लॉ। तो माई फादर इन लॉ, मेरा फादर इन लॉ कैसे आएगा, वुमेन बोल रही है, तो पहले इसका हस्बैंड होगा, उसका जो पापा होगा वो वुमेन का क्या लगेगा, फादर इन लॉ। मैंने आखिरी से पढ़ना स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफ थे, ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, तो मैंने इसको आखिरी से पढ़ना स्टार्ट किया। तो वुमेन सेज माई ओन फादर इन लॉ, तो मेरे फादर इन लॉ कैसे आएंगे, पहले वुमेन का हस्बैंड, फिर उसका पापा, उसके फादर इन लॉ। ओनली ग्रैंडसन, ओनली ग्रैंडसन मतलब इसका बच्चा, ओनली ग्रैंडसन मतलब इसका बच्चा, सन मतलब बेटा, ठीक है। ऑफ द वाइफ, ऑफ द वाइफ मतलब इसकी वाइफ, ऑफ द वाइफ मतलब इसकी वाइफ, ठीक है। ही इज द फादर इन लॉ, ये जो मैन था वो इसका फादर इन लॉ लगा। हाँ सही तो है, ये जो आदमी था वो इसका क्या लगा, फादर इन लॉ लगा, ये मैन है। अब पूछा क्या था आप लोगों से, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू अ वुमेन। अब ये आदमी जो है इसका क्या लगता है, इसका ये जो अब पर्सन है इस औरत का क्या लगता है, हस्बैंड यहाँ पे लगता है। सो आंसर इज बी ऑप्शन। डन है जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास एडवांस नंबर सीरीज से है, कुछ भी यहाँ पे लॉजिक आ जाते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 21/5। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 21 में से 17 को माइनस करेंगे आप लोग तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 5 प्लस 7 करेंगे कितना आएगा आपके पास 12। और जो भी आपके पास इसको सोल्व करके इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 12 चौके कितना होता है 48, 22 में 2 अगर करते हैं तो आता है 24। सिमिलरली इसमें भी ऐसा करना पड़ेगा। 28 में से 25 को माइनस करेंगे, ठीक है, आपके पास बचेगा यहाँ पे 3 और 13 प्लस 7 करेंगे कितना होता है 20। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60 बटा में 2 करेंगे कितना आएगा 30।
तो मैंने एक चीज़ समझी कि अगर इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ सेंटर नंबर 24 आ गया, इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ सेंटर नंबर 30 आ गया, तो आगे भी यही होगा। तो 16 माइनस ऑफ 10 कितना आ जाएगा 6, और आगे आपके पास यहाँ पे है 2 प्लस ऑफ 8 कितना है 11, 2 प्लस 8 कितना है 11, तो 11 प्लस इंटू ऑफ 6 आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 4 आएगा, नॉट 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा बेटा, हाँ 6 नहीं आएगा 4 आएगा, चलिए, और यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है ना, 8 और 2 10, 10 इंटू 4 40 होता है, तो डी ऑप्शन, ठीक है जी, डी फॉर दिल्ली आपका यहाँ पे आंसर बच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन जो है डायरेक्शन से लिया गया है, कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ, मतलब कुणाल यहाँ पे है, यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। देन फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, यहाँ से वापस आ गया साउथ की तरफ, कितना 6 किलोमीटर, ठीक है। देन ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, और यहाँ से ईस्ट की तरफ चला गया, कितना 3 किलोमीटर। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 10 था, तो ये 4 होगा। देन आगे क्या है, हाउ फार एंड ही इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब ये पूछा है कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आप देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ से आप लोग देखते हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी और कितना डिस्टेंस आपके पास आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट देखते हैं, तो ऊपर नॉर्थ है और इस तरफ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट आएगा सबसे पहले तो, ठीक है। और आगे पाइथागोरस लगाते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 5 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट आपका बन जाएगा। डी ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। बताइए इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए, तो जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते ज्ञानम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है, तो इस बार फिर से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं, आशीष। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का वीकली मॉक टेस्ट और उसको चेक करते हैं कि क्या क्या आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन रहे थे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये है, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट। अब बोला कि जो भी चेंजेस करने हैं किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में, उसको क्या बोला जाता है आपके पास, क्रिएट करना, एडिटिंग बोला, मॉडिफाइंग या फिर एडजस्टिंग, ठीक है। तो क्या बोला जाता है इस चीज को? अगर मैं बात करता हूँ, क्रिएटिंग होता है न्यू बनाना, एडिटिंग होता है आपके पास डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज करना, जो कि बी ऑप्शन आंसर है। मॉडिफाइंग होता है एक ही जो बना हुआ उसमें चेंज करना, और एडजस्ट करना होता है उसकी कुछ भी वैल्यू को एडजस्ट करना। तो यहाँ पे चेंजिंग को क्या बोला जाता है? एडिटिंग बोला जाता है। चेंजिंग को क्या बोला जाता है? एडिटिंग बोला जाता है। तो आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है, आंसर इज बी ऑप्शन। डन है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास यहाँ पे क्या है। वर्चुअल मेमोरी इज, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द सीपीयू यूजेस एन एक्सटेंडेड रैम, या फिर इन अ रैम, या फिर ओनली नेसेसरी इफ यू डू नॉट हैव एनी रैम इन योर कंप्यूटर, या फिर अ बैकअप डिवाइस फ्रॉम अ फ्लॉपी डिस्क। देखो मेमोरी, वर्चुअल वर्ड का मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए। वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल क्या होता है? जो कि नॉन रियलिस्टिक होता है। तो ये जो मेमोरी होती है, ये क्या होती है? हार्ड डिस्क के ऊपर होती है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क के ऊपर होती है, तो सबसे पहले ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क के ऊपर ही मेमोरी होती है, जो कि आपके सीपीयू को, आपके सीपीयू से स्पेस क्या करती है? बोरो करती है, और कोई प्रोसेस जो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे करवा देती है। तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या है? ए ऑप्शन आपके पास, कि मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द सीपीयू यूज एंड एक्सटेंड द रैम, ठीक है। चलिए, होपफुली बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर्स यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर क्या करता है आपके पास यहाँ पे? नंबर सिस्टम में डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है, और आपके पास परफॉर्म करता है कोई भी कैलकुलेशन। डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, या फिर बाइनरी में। अगर मैं बात करता हूँ, एक बात को समझना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, ऑक्टल भी नंबर सिस्टम में है।
बट अगर मैं बात करता हूं आपके पास यहाँ पे बाइनरी सिस्टम में ये क्या होता है, कैलकुलेशन का काम यहाँ पे करता है। सो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, कोई भी काम जो है बाइनरी में किया जाता है, 0 और 1 के फॉर्म में किया जाता है, इसे लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। सो आंसर इज डी ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर रहेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, द की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। ऐसी कौन सी की है जो लॉन्च बटन आपके पास स्टार्ट करती है? पहला है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है एग्जिट कर जाना, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। अगला है शॉर्टकट। शॉर्टकट तो आंसर कभी नहीं होगा। अब अक्सर बच्चों को लगता है सर शिफ्ट या फिर विंडोज में, अगर मैं बात करता हूँ शिफ्ट अकेला यूज नहीं होता है, शिफ्ट किसी कॉम्बिनेशन के साथ यूज होता है, तो शिफ्ट भी नहीं होगा। देखो आप लोगों को अगर नहीं भी आता तभी भी आप चीजों को एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आंसर क्या अपना विंडोज। विंडोज अगर बटन आप प्रेस करते हैं तो लॉन्च बटन आपके पास आज आ जाता है। डन, इसका आंसर क्या बनेगा? विंडोज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि हमें स्टार्टिंग में पहुंचना है, जहां से टेक्स्ट क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो हम कौन सी की जो है प्रेस करेंगे? होम की, अ की, ए, या फिर पेज अप, या फिर एंटर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एंटर का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में चले जाना, या तो ये तो नहीं होगा। पेज अप का मतलब होता है ऊपर लेके आना, ये नहीं होगा। ये तो कुछ है ही नहीं। अब अगर मैं बात करता हूँ तो बिगिनिंग में आने के लिए आप लोगों को होम दबाना पड़ता है। तो सबसे पहले जहां जहां टेक्स्ट स्टार्ट हुआ था, अगर होम दबाते तो आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डन। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। आप एक ऐसी चीज लिखते हैं जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा है। मतलब एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप वहां पे लिखते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है। तो वो क्या होता है? टू होता है, सब्जेक्ट होता है, कंटेंट होता है, या सीसी। सीसी तो नहीं होता, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, तो आंसर नहीं होगा। टू तो जिसको सेंड किया जा रहा है वो होता है। कंटेंट में तो पूरा कंटेंट रहेगा, ये भी नहीं होगा। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट में आपने लिखा होता है कि सब्जेक्ट का मैटर क्या है, किसके रिगार्डिंग आपको ये मेल किया जा रहा है। सो आंसर इज सब्जेक्ट। ठीक है, आंसर इज सब्जेक्ट। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर? डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, या फिर एक्सक्लूजन। अगर मैं बात करता हूं तो इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट फॉर्म ऑफ द डेटा। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? लार्जेस्ट अगर मैं बात करता हूं, आपके पास सबसे नंबर पेन पे आएगा केबी, केबी के बाद आएगा एमबी, एमबी के बाद आएगा जीबी, और जीबी के बाद आएगा टीबी। तो मतलब आपके पास यहाँ पे ये एक ऑर्डर बना, नंबर 1 पे केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी। ठीक है, ये आपके पास रहेगा। तो आंसर इज टीबी। टीबी और टीबी स्टैंड फॉर टेराबाइट, TERA मैं लिख देता हूं, टेराबाइट। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज द कंपोनेंट। ऐसी कौन सी चीज है जो कंप्यूटर को बताती है कि आपके पास हर एक कंपोनेंट को कैसे यूज किया जाएगा? यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब देखो एप्लीकेशन प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर तो हजारों ही चीजें आती हैं, तो आंसर नहीं बन सकता। यूटिलिटी इन्हांसमेंट के लिए होता है, नेटवर्क के थ्रू काम किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल सही आंसर है। मतलब विंडोज के थ्रू, विंडोज की अगर मैं बात करता हूँ जैसे विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है ना, ये सारी की सारी विंडोज के थ्रू यहाँ पे काम किया जाता है, जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे करना है और कब और क्यों करना है और ये कैसे परफॉर्म आपके पास होगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन। डन है जी। चलिए, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट। रवि टेक 6 hours टू टाइप 32 पेज। रवि कितना टाइम ले रहा है? 32 hours ले रहा है।
और 6 आवर्स ले रहा है 32 पेज को टाइप करने में। अगर हम यहां से रवि की स्पीड की बात करें तो 32 डिवाइड बाय 6 मतलब वो 1 घंटे में कितने पेज कर रहा है, 16/3 कर रहा है। ऐसे अगर हम कुमार की बात करें तो कुमार 40 पेज टाइप कर रहा है कितने टाइम में, 5 आवर्स में, तो कुमार की स्पीड क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों की स्पीड को ऐड करूं, राम प्लस कुमार, तो 16/3 प्लस 8, आप एलसीएम लो, 16 प्लस 24 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। कितना, 40/3। अब उसने आगे क्या पूछा है कि उनको कितना टाइम लगेगा अगर वो दोनों मिलकर 110 पेज को टाइप करते हैं, 110 पेज टाइप करते हैं, तो 110 डिवाइड बाय 40/3 और 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 33/4। ठीक है, इसका मतलब है 81/4, तो 8 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ सुरेश एंड राकेश आर इन द रेशियो 5:4 एंड द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:2। मतलब देखो, इसने 5 रुपए कमाए होंगे तो 3 रुपए खर्च किए, और इसने 4 कमाए तो 2 रुपए खर्च किए, मतलब दोनों ने 2 रुपए सेव किए हैं, जो कि 6000 के इक्वल है। अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 3000 हो जाएगा। तो उसने सुरेश की इनकम पूछी थी, सुरेश इनकम कैन बी, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 4 people are running around a circular ground from a point on the circumference at 9 a.m. For one round, these 4 persons take respectively 40, 50, 60 and 30 minutes. At what time will they meet together? देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ये टाइम दे रखा होता है ना, इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम क्या होता है, ऐसा मल्टीपल, ऐसा नंबर जो इन सभी गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। देखो, ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, इन दोनों में मुझे कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 300 होगा। 300 इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो 300 का डबल क्या होता है, 600। तो 600 इस सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये मिनट्स था, तो डिवाइड बाय 60 कर लेते हैं, तो 600 मिनट्स का मतलब है 10 आवर्स, 10 घंटे, कि 10 घंटे के बाद वो एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। सुबह अगर 9 बजे चले थे तो शाम के 7 बजे, मतलब 10 घंटे बाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, उमा स्टार्ट ए बिजनेस, सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। उमा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें उसने कितना इन्वेस्ट किया, 50,000। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ प्रिया ज्वाइन हर विद एन कैपिटल ऑफ 80,000, और इसको प्रिया ने ज्वाइन किया किसके साथ, 80,000 के साथ, आफ्टर 3 इयर्स। देन प्रॉफिट ऑफ दिस, देखो इसने पैसा पूरा 36 महीने के लिए और इसने सिर्फ 30 महीने के लिए पैसा यूज किया। देखो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 5 इस 30 को 6 पे डिवाइड करेगा, ये इसको 6 पे डिवाइड करेगा, 2 से डिवाइड करो तो दोनों का रेशियो क्या आ गया, 3:4 आ गया। इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, आपका 3:4 आ गया, मतलब टोटल 7। तो इसको पहले 3 पे डिवाइड करो, फिर 5 पे डिवाइड करेगा, 3500। उसने प्रॉफिट किसका पूछा है, उमा का, और उमा के कितने हैं, 3 यूनिट है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3500 से, तो मतलब 10,500। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, दीपक वॉज टू गेट ए 50% हाइक इन हिज पे, बट द कंप्यूटर ऑपरेटर ओनली टाइप द फिगर एज 80%। अगर मान लेते हैं कि दीपक की सैलरी 100 थी, ठीक है, इसको 50% हाइक मिलना था, तो मतलब इसकी सैलरी 150 रुपए होने वाली थी, बट कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलती से क्या कर दिया, इसको 80% टाइप करके इसको 180 रुपए बना दिया, दीपक की होगी बल्ले बल्ले। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, एंड printed the new payslip, he received this revised salary for the 3 months, और 3 महीने तक उसने मजे किए और उसने कितना लिया, 80% ले लिया। बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज द मिस्टेक, बट गलती तो एक दिन पकड़ी जानी थी, और उसके बाद क्या हुआ, what percentage of his correct new salary will get in the 4th month if the excess paid to him in the previous 3 months is to be deducted from the 4th month। कि भैया कंपनी कह रही है हमने 3 महीने में जितना आपको ज्यादा दिया। देखो अगर मैं यहां से डिवाइड की बात करूं, देखो 150 गुना 3, 180 गुना 3, डिफरेंस तो 30 का है, मतलब वो हर महीने 30 रुपए ज्यादा ले रहा था, तो उसने टोटल 90 रुपए ज्यादा लिए थे। अब 150 में से 90 रुपए उसको ज्यादा वो ले चुका है, तो उसको सिर्फ 60 रुपए मिलने वाले हैं, कितने के ऊपर, 150 के ऊपर गुना 100।
ठीक है, इससे कैंसिल और ये इसको 4 पे काट देगा तो 40%। उसको फोर्थ मंथ में अपनी सैलरी का कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 40% मिलेगा। आई होप क्लियर होगा ये। बढ़ते उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 2000 कैंडिडेट आउट ऑफ विच 900 आर बॉयज। 2000 टोटल कैंडिडेट्स हैं, जिसमें अगर मैं बॉयज की बात करूं तो 900 हैं और बाकी 1100 क्या होंगे, आपके गर्ल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, 32% ऑफ बॉयज एंड 38% ऑफ गर्ल्स पास द टोटल परसेंटेज ऑफ फेल। हमें फेल का परसेंटेज निकालना। एक चीज बताओ, अगर 32% बच्चे पास हुए हैं तो बाकी 68% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। और अगर 38% यहां पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 62 हुए हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूं, देखो परसेंटेज है 20 कैंसिल, 62 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा बनता है 682। ये परसेंटेज है 20 कैंसिल, 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 6 54, 54 प्लस 6 आपका 761 हो जाएगा। कितना, 4 9 12। और इसको हमें कैलकुलेट करना है किसके ऊपर, 2000 के ऊपर इंटू 100। देखो 20 से 20 कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे पहले तो 6 पे डिवाइड करेगा, ठीक है, फिर 4 पे डिवाइड करेगा, मतलब 64 पॉइंट समथिंग अगर आंसर आएगा तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा। आई होप क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, किरण एंड योगेश पार्टनर्स इन ए बिजनेस, किरण कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 15 मंथ्स। ठीक है, दो लोग हैं, उसने 1/4 कैपिटल, मतलब अगर टोटल 4 रुपए थे तो 4 में से 1 इसने यूज किया और 3 इसने यूज किया। इसने पैसा यूज किया था 15 महीने के लिए। ठीक है, एंड योगेश रिसीव 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। अगर टोटल प्रॉफिट 3 था तो इसने प्रॉफिट लिया 2 और इसने प्रॉफिट लिया कितना, 1। ठीक है, देन हाउ मच लॉन्ग योगेश इन्वेस्ट द मनी। तो इसने कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 30 किसके इक्वल आ गया, 3x के इक्वल आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10 मंथ्स। तो मतलब इसने कितने महीने के लिए पैसा यूज किया था, 10 मंथ्स के लिए पैसा यूज किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोहन इन्वेस्टेड 20,000 रुपीज इन फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट। उसने इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, आफ्टर एवरी थर्ड ईयर ही एडेड इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल। और 3 साल के बाद वो क्या करता है, जो भी उसको इंटरेस्ट मिला प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। 10 गुना 3, मतलब उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था, 30%। और 30% किसका, 20,000 का। ठीक है, परसेंटेज से 20 कैंसिल, मतलब उसको 6,000 रुपए मिले थे। ठीक है, कितने मिले थे, 6,000 रुपए। 20,000 उसके पास थे, 6,000 उसको मिल गए 3 साल के बाद। तो मतलब जब 3 साल के बाद उसके पास जो टोटल पैसा था वो 26,000 रुपए हो गया था। और इसके ऊपर वो दोबारा से क्या करेगा, 30% इंटरेस्ट लेगा। परसेंटेज से 20 कैंसिल, 26 इंटू 3 क्या होता है, 78। और पीछे आपकी 2 जीरो लग जाएंगी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। आई होप क्लियर होगा ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द स्कूल एज ऑफ नीलम एंड पूनम इज 5:6। ठीक है, नीलम और पूनम, इनके एज का रेशियो क्या है, 5:6। मतलब ये 5x है तो ये 6x हो जाएगा। इफ द रेशियो बिटवीन 1/3 एज ऑफ नीलम, मतलब नीलम की एज का 1/3 और इसकी एज का हाफ, मतलब 3x, और इनका रेशियो कितना है, 5:9 है। अगर ध्यान से देखो तो दोनों बराबर ही तो हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकते, मतलब हम इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बता सकते। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ए क्रिकेटर हैड ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64th इनिंग। ठीक है, 64 इनिंग्स में हमने माना कि उसका एवरेज क्या रहा होगा, x। नेक्स्ट इनिंग में वो 0 पे आउट हो गया तो एवरेज कितना हो गया, 65 इंटू x माइनस 2। ठीक है, 64x किसके इक्वल हो गया, 65x माइनस 130। तो x की वैल्यू भैया क्या आ गई, 130 आ गई। मतलब उसका इनिशियल एवरेज 130 था। उसने पूछा क्या, न्यू एवरेज तो 2 कम कर दो, 128 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार है जिसका प्राइस, जिसकी कीमत 36,000 रुपए है। इसके प्राइस को उसने 2 हिस्सों में बांटा, 20,000 और 16,000। ठीक है, इसके ऊपर 8% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 92% में सेल किया। इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 95% में सेल किया। ठीक है, हमें टोटल डिस्काउंट के बाद वैल्यू बतानी है ए की, और बी की भी उसने बोला 36,000 के ऊपर डायरेक्ट उसने 7% का डिस्काउंट दिया। देखो परसेंटेज से 20 कैंसिल हो गई, तो मतलब ये उसने 18,400 में सेल किया था।
इसका 5% मतलब 800 बनता है, तो मैं कह सकता हूं कि 15,200 में सेल किया था। तो 18 और 5 33 और ये आ गया 400 और 2 600, 33,600 रुपए। 33,600 रुपए ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि इसी में 33,600 है, बाकी किसी में भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। अगर उसकी टोटल इनकम एक्स है तो फूड के ऊपर हम कह सकते हैं उसने x/4 खर्च कर दिया फूड के ऊपर, ठीक है। एंड 1/3 लेस देन व्हाट ही स्पेंड ऑन फूड ऑन द एजुकेशन। अब देखो x/4 उसने किसके ऊपर खर्च किया था, फूड के ऊपर, और इससे इसका 1/3 उसने किसके ऊपर कम खर्च किया है, आपका 1/3 उसने कम खर्च किया है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। अब मैं अगर यहां से x/4 कॉमन ले लूं तो ये 1 - 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगा। तो x/4 इंटू 2/3, तो उसने एजुकेशन पे कितना खर्च किया, x/6 खर्च किया। तो उसने फूड और एजुकेशन का दोनों का पूछा था हमसे, तो x/4 प्लस x/6 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3x और ये डिवाइड करेंगे 2x, तो मतलब 5x/12। तो 5/12 उसने खर्च किया था टोटल का, ठीक है। चलिए ओके, लास्ट क्वेश्चन था ये। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है, तो आप अपना डाउट हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा उसको अच्छे से सोल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, we are up to the English section of this mock. Let us just catch it out what we have in frame for all these things. So let us choose a good color for you guys. There we go. So आपके पास एक सेंटेंस है, उसमें बोल्ड पार्ट दे, सारा ही बोल्ड है जी। वैसे ये ब्रोक ओपन दिख ही रहा ऑप्शन से। द प्लान ब्रोक ओपन फॉर वांट ऑफ फंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, द प्लान ब्रोक अप, खराब हो गया था, टूट गया था। The plane touched down at 6 PM। नहीं, इसमें तो बोल्ड, एक तो ये सारा ही बोल्ड हो गया है। ऑन लिखा है ना, ऑन, तो ऑन स्केड्यूल, एट स्केड्यूल, हाँ तो ऑन स्केड्यूल ही रहेगा जी। द समर हैज सेट आउट, सेट इन हो जाएगा। सेट इन का मतलब होता है टू स्टार्ट इट आउट एंड टू कम अप। आई कैन नॉट पुट फोर्थ विद दिस नास्टी फेलो, तो आई कैन नॉट पुट अप हो जाएगा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूं। The dispute regarding the emoluments of junior doctors came to a head this week. It means reached a crisis this week. तो इसका मीनिंग बताना था जो आपके पास ईडियम है। आगे भी एक ईडियम आ रहा है, बड़ा स्ट्रेंज फेलो है, डिफिकल्ट है उससे डील करना। ऐसा लगता है कि उसके पास बी है इन बोनेट, तो ये बी इन इज बोनेट का मतलब होता है एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग, कि मुझे बहुत ऑब्सेशन है किसी चीज की। कहते हैं ना कि भी पत्थर की लकीर रख के रखता है वो। आपको बताना है, ऑपोजिट बताना है, एंटोनिम। द फैक्ट्स ऑफ द केस वर ऑब्सक्योर्ड। ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है छुपा के रखना, धुंधला धुंधला रखना। उसका ऑपोजिट हो जाएगा क्लैरिफाइड, मतलब दोगली बातें नहीं चल रही थी। यहाँ पे क्या करना है, ड्यू टू एक्सेसिव, अच्छा ये है क्राफ्टीनेस वर्ड है आपके पास। ही अचीव्ड सक्सेस बट लॉस्ट फ्रेंड्स। क्राफ्टीनेस इज बनावटीपन, व्हेन यू टेंड टू चेंज योरसेल्फ, बड़ा बनावटी सी पर्सनालिटी होती है ना, उसका ऑपोजिट निकालना है। ऑपोजिट इज सिंप्लिसिटी, यस। एडजेक्टिव एडवर्ब, द गर्ल्स वोर ब्राइट कलर्ड स्कर्ट्स हो जाएगा जी। द हेडमास्टर हैज अ वेरी लाउड वॉइस हो जाएगा जी, लाउडली नहीं होगा, वॉइस की बात हो रही है जो कि नाउन है, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव। मार्क द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन। वी डिस्कस्ड, डिस्कस्ड के साथ अबाउट नहीं लगता, इनफैक्ट कुछ नहीं लगता, ऑफ भी नहीं लगेगा, ये ठीक है। डिस्कस्ड, ऑन भी नहीं लगेगा जी, आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। फॉलोड बाय इफ सुनील इज प्रेजेंटेड देयर, इफ सुनील वर प्रेजेंट देयर, अगर सुनील वहां प्रेजेंट होता तो वो मुझे अलाउ कर देता। इफ के साथ कंडीशनल में वर लग जाता है, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो, शी हो, यू हो, आई हो, जो भी हो। इफ आई वर यू, ऐसा हो जाएगा। ओह, देयर वी गो। सो आई हैव एंजॉयड इट, हैव अ गुड डे।